अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं मोहम्मद शहजाद तनवीर एंड वेलकम टू आवर चैनल हाउ टू फ्रीलांसिंग। पिछली क्लासेस में हमने मेन टाइप्स ऑफ कंटेंट राइटिंग में आर्टिकल राइटिंग और बिजनेस राइटिंग को डिस्कस किया था। आज हम बाकी जो रिमेनिंग टाइप्स हैं उन सबको कवर करेंगे, जिनमें वेब कंटेंट राइटिंग, प्रेस रिलीज राइटिंग, एसईओ कंटेंट राइटिंग, टेक्निकल राइटिंग, सोशल मीडिया राइटिंग, ई बुक राइटिंग, कॉपी राइटिंग और ईमेल राइटिंग है। तो सबसे पहले वेब कंटेंट राइटिंग। किसी भी वेबसाइट पर जो फर्स्ट इंप्रेशन होता है वो होम पेज का होता है। किसी भी वेबसाइट पर जाएं तो सबसे पहले जो हमें शो होता है पेज, वो होम पेज होता है। तो होम पेज किस तरह से डिजाइन किया गया है, उसके अंदर क्या क्या चीजें हैं, प्रोडक्ट या सर्विस को किस तरह से जो है वो डिस्क्राइब किया गया है, उसके अंदर एफएक्यूज किस तरह के हैं। वेब कंटेंट राइटिंग में होम पेज होता है, प्रोडक्ट या सर्विस पेज होता है, अबाउट अस पेज होता है, कॉन्टैक्ट पेज होता है, एफएक्यूज होते हैं और प्राइवेसी पॉलिसी होती है। ये सब जो है वो वेब कंटेंट राइटिंग में आता है। The home page of any website is one of the most frequented pages. The home page is where the majority of website visitors arrive. It is, in most circumstances, their first impression and encounter with your brand, product, or service page. Explain why your product or service is required. Discuss the benefits of your product or service. Concentrate on the advantages. Be simple and straightforward. Show off your knowledge, experience, and words. Be the expert, yet communicate in simple words. Your About Us page should be more than just a profile for your company. It should reflect your personality, write about your ideals and values, explain why you value the product or service you provide. Any conversation, contact, or engagement that takes place on behalf of the company affiliated group in the context of establishing, developing, maintaining, servicing, or otherwise promoting a commercial relationship or transaction is referred to as a business contact. It is a page on a website that provides rapid solutions to clients' inquiries. It stands for frequently asked questions. The goal is to make the responses brief and direct so that individuals can get the information they need immediately. We refer to it as a FAQs. नेक्स्ट है प्रेस रिलीज राइटिंग। ये किसी भी कारोबार में अनयूजुअल एक्टिविटी को प्रेस रिलीज कहते हैं। मसलन कोई नई प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं, या फिर जैसे जैज और वारिद रिसेंटली मर्ज हो गए थे, किसी एक बिजनेस को कोई दूसरा बिजनेस अक्वायर कर ले तो उसको मर्ज या एक्विजिशन कहते हैं। किसी प्रोडक्ट में कोई बड़ी अपडेट हो या कोई बिजनेस अपना नाम तब्दील कर ले तो ऑफिशियली जो है वो अनाउंस किया जाता है, या फिर कोई बड़ा अवार्ड वगैरह विन कर ले कोई ब्रांड या बिजनेस तो प्रेस रिलीज जारी किया जाता है। प्रोडक्ट लॉन्च, इट्स अ डॉक्यूमेंट that a firm releases when it introduces or launches a new product. This early advertising is critical for a successful product launch. This is why the media and the general public should be interested. Business expansion. A stage of business growth occurs when a corporation looks out new ways to reach out to more clients, raise brand awareness, and boost revenues. Purchasing additional assets, launching new units, expanding sales employees, boosting advertising, adding franchises, entering new markets, providing new goods or services, and so on are all examples of companies' growth. A press release for a planned event informs media outlets as well as present and potential consumers about the event. It exposes vital facts like as the event's subject, who the primary speakers are, and where the event will be held, among other things. उसके बाद आता है जी एसईओ कंटेंट राइटिंग में। एसईओ कंटेंट राइटिंग सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन कंटेंट राइटिंग। एसईओ कंटेंट राइटिंग इज अ पार्ट ऑफ वेब कंटेंट राइटिंग, और एसईओ कंटेंट राइटिंग को ज़्यादा पे किया जाता है दूसरे राइटर्स के मुकाबले में। व्हाट इज एसईओ कंटेंट राइटिंग? ऐसे वर्ड्स जो गूगल पर सबसे ज़्यादा सर्च किए जाते हैं, उन वर्ड्स या लाइंस को अपने कंटेंट में इस्तेमाल करने को एसईओ कंटेंट राइटिंग कहते हैं। मतलब ऐसे वर्ड्स या लाइंस को अपने कंटेंट में इस तरह से इस्तेमाल करना कि अगर कोई सर्च करे तो हमारा जो कंटेंट है वो सबसे ऊपर शो हो। अब है जी टेक्निकल राइटिंग।
किसी भी टेक्निकल प्रोसेस का आम लोगों को समझाना थोड़ा मुश्किल होता है। जैसे कि किसी को अगर ये समझाना हो कि कंप्यूटर कैसे काम करता है, मतलब इसमें हम जो काम करते हैं हम तो बस माउस और कीबोर्ड की मदद से बटन्स को प्रेस करते हैं और हमें जो करना होता है वो हो जाता है। लेकिन इस सब में एक प्रोसेस बैक एंड पर भी चल रहा होता है। वो प्रोसेस जो बैकएंड पर चल रहा है उसको समझाने के लिए डेवलपर्स इस तरह लिखते हैं कि आम लोगों को, जिनको उसकी भावनाओं नहीं होती, उनको भी ये चीज समझ आ जाए। उसे टेक्निकल राइटिंग कहते हैं। नेक्स्ट है, व्हाट इज सोशल मीडिया राइटिंग। तो सोशल मीडिया में कैप्शंस होते हैं, हैशटैग्स होते हैं, बायो, डिस्क्रिप्शन, ग्राफिक कंटेंट वगैरह होता है। फेसबुक के ऊपर अपनी पोस्ट को रैंक करने के लिए डिफरेंट चीज़ों का यूज़ किया जाता है। मसलन फेसबुक के ऊपर जो है एक दिन में 350 मिलियन पोस्ट वो की जाती हैं, और इंस्टाग्राम पे 450 मिलियन पोस्ट होती हैं एक दिन के अंदर, और ट्विटर पे 500 मिलियन जो है वो एक दिन के अंदर पोस्ट होती हैं, और लिंक्डइन पे 2 मिलियन पोस्ट। तो ये फेसबुक पे देखा जाए तो एक सेकंड में 4000 पोस्ट होती हैं, और इंस्टा पे 5.5 के, और ट्विटर पे 6 के। अब इन सब में अब इन अब अपने इन पोस्ट को रैंक करने के लिए हम डिफरेंट चीज़ों का यूज़ करते हैं, जैसे कि कैप्शंस है, हैशटैग और डिस्क्रिप्शंस वगैरह, और ग्राफिक कंटेंट वगैरह। तो उन सारी चीज़ों को जो है वो सोशल मीडिया राइटिंग कहते हैं। Captions. A caption is a textual explanation that goes along with a photo on social media. Text, hashtag, @mentions, and emoticons can all be used in captions. Captions are a crucial generator of engagement and an integral component of communicating your photos narrative on social media. Graphic content. The visual component of every social media post, generally in the form of photographs, GIFs, and videos, is known as social media graphics. There are a lot of things that go into making visually appealing visuals for social networking. नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं ई बुक को। किसी भी बुक का डिजिटल वर्जन ई बुक कहलाता है, या आप कह सकते हैं कि हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में कन्वर्ट करने को ई बुक कहते हैं। ई बुक का मतलब है इलेक्ट्रॉनिक बुक। और इसकी ज़रूरत क्यों पेश आती है? वैसे तो इसकी बहुत सी वजूहत हैं, लेकिन मैं चंद एक पॉइंट आउट करूंगा ताकि आपको मेन पर्पस समझ आ जाए। सबसे पहले, अगर हार्ड कॉपीज खत्म हो जाएं या एडिशन खत्म हो जाए तो कस्टमर्स को सॉफ्ट कॉपीज प्रोवाइड कर दी जाती हैं, और इसका कंटेंट जो होता है वो यूजर एंड से तब्दील नहीं किया जा सकता, लेकिन जो ऑथर होता है वो तब्दील कर सकता है अगर उसकी ज़रूरत पेश आए तो। ई बुक के मकासद में कॉस्ट को कम करना भी होता है। मसलन प्रिंटिंग एक्सपेंस जो है वो ज़ीरो होता है, और एक दफ़ा टाइप की हुई बुक की जितनी चाहे कॉपीज आप मिनटों में बना सकते हैं। ई बुक में इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि कोई बात समझाने के लिए आप पिक्चर्स और लिंक्स वगैरह भी ऐड कर सकते हैं। ई बुक के फॉर्मेट्स हैं ये, ई पब है इलेक्ट्रॉनिक पब्लिकेशन, और AZW है, ये अमेजोन का है फॉर्मेट, जब उन्होंने किंडल को लॉन्च किया था। TXT है, मोबी है, बहुत कम यूज़ होते हैं, और PDF है, सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है। Guides. Often known as an electronic book or ebook, is a book publication that is available in digital form and is viewable on the flat panel display of computers or other electronic devices. Kindle. The Kindle is a wireless portable electronic reader that allows users to browse, download, and read ebooks, periodicals, blogs, newspapers, and other digital media. Courses. Electronic book training class, using InDesign or Microsoft Word to create ebooks and publications for the iPad, Nook, Kindle, and other devices. नेक्स्ट हम स्टार्ट करने लगे हैं कॉपी राइटिंग। कॉपी राइटिंग की डेफिनेशन में आपको आसान अल्फाज में समझाता हूँ। मसलन ऐसी लाइंस जो किसी इंडिविजुअल को किसी कंपनी की सर्विसेज के लिए साइन अप करवाने पे मजबूर कर दे, या ऐसी लाइंस जो एक बंदा पढ़कर कन्विंस हो जाए कि ये चीज़ तो बनी ही मेरे लिए, या सिंपल अल्फाज में ऐसी लाइंस जिन्हें पढ़कर आपको लगे कि हाँ ये चीज़ मुझे खरीद लेनी चाहिए, कॉपी राइटिंग कहलाता है। लिखाई के जरिए सेल्स को बूस्ट करना या अपने बिजनेस को ग्रो करना कॉपी राइटिंग कहलाता है। मसलन सोशल मीडिया पर पोस्ट की जाती हैं डिफरेंट प्रोडक्ट्स, उनके डिस्क्रिप्शन वगैरह, या फिर लैंडिंग पेजेस वगैरह बनाने के लिए कॉपी राइटर्स को हायर किया जाता है। अच्छा कॉपी राइटर
प्रोडक्ट में ऐसी ऐसी खसूसियत बता देता है कि पढ़ने वाले बंदे को महसूस हो रहा होता है कि ये चीज़ मेरी ज़रूरत की है और इस चीज़ में मेरे लिए फ़ायदा ही फ़ायदा है। या फिर एक और आपको मिसाल देता हूँ, लोकल बसेस के अंदर जब एक आदमी गोलियों के पैकेट लेके चढ़ता है, तो वो आपको उन गोलियों के फ़वाइद में हर वो बीमारी बताता है जो आप में कहीं न कहीं मौजूद होती है। या फिर वो सारी बीमारियाँ गिनवा देते हैं कि ये इस बीमारी के लिए भी है, इसके लिए भी है, इसके लिए भी है। तो उन सारी बीमारियों में से कोई 1-2 आप में ज़रूर होती हैं। तो वो एक खूबसूरत सा डिस्क्रिप्शन जो वो बंदा पढ़ता है, वो कॉपीराइटिंग है। या वो लाइन्स जो वो बोलकर आपको कन्विंस कर लेता है कि ये चीज़ आपकी ज़रूरत की है, आप इसको खरीद लें, वो कॉपीराइटिंग है। Infographics. An infographic is a graphical depiction of information or data. An infographic may help you communicate information in the form of an appealing visual image, whether it's a research on market trends or a step-by-step instruction on how to freelancing. Landing page. The purpose of landing page copywriting is to attract visitors to stay, submit an email or two, make a purchase, or do anything else. Its purpose is to persuade someone to perform the necessary action, which will pave the road for your company's success. Website copy. The practice of creating digital content for landing sites, product pages, blog articles, and everything in between is known as website copywriting. Entertaining text may keep your website visitors interested and drive them to perform activities that are essential to you as well as significant to them. Ad copies. Ad copy is a sales letter that addresses potential buyer concerns. It also emphasizes the essential feature and benefit that the buyer will receive if they make a purchase. Banners, flyers. Banners are typically used for advertising purposes, promoting the advertiser's product or services. Its most typical application is to promote businesses, events, goods, or website. नेक्स्ट है ईमेल राइटिंग। ईमेल ईमेल राइटिंग की ये डिफरेंट एग्जाम है। ईमेल राइटिंग में भी इसका मकसद सेल्स को बूस्ट करना होता है और अपने सब्सक्राइबर्स को कस्टमर्स में कन्वर्ट करना होता है। मसलन अगर कोई नई डील्स आती हैं, आप उनका बता सकते हैं उन ईमेल्स के ज़रिए, या फिर कुछ ऐसी डील्स आती हैं जिनमें एक परसेंटेज ऑफ कर दी जाती है, तो आप अपने कस्टमर्स को इन्फॉर्म करते हैं ईमेल्स के थ्रू। तो और भी बहुत से मकासद होते हैं, लेकिन मेन जो है वो यही होते हैं कि आप अपने सब्सक्राइबर्स को अपने कस्टमर्स में कन्वर्ट करते हैं या फिर पुराने कस्टमर्स को नई डील्स के बारे में आगाह करते हैं। Newsletter. A newsletter is an email that is issued on a regular basis to notify your audience on the most recent news, tips, or updates about your products or services. Acquisition email. The technique of employing email campaigns to expand your client base is known as acquisition email marketing. This entails sending emails to potential clients who are likely to be interested in your products, as well as receiving emails about them. Retention email. A retention email is a message delivered to current client that is targeted and triggered in order to promote engagement, loyalty, and satisfaction. It aids in bringing clients back time after again. Promotional emails. Promotional emails' main goal is to spread the news about your product or service to potential buyers. Coupons or other discounts, access to unique information, or admission to an invitation-only event are all common email